Good morning to all my dear students. Here we are starting with the e-business and some benefits and limitations of e-business. Okay. In the last lecture we have studied certain emerging modes of e-business, that is business to business, business to customers, customers to business, business to administration, and administration to business. Okay, so all those were ways or modes of starting your e-business by sitting at your home. Okay, if you are also planning to start some e-business though, so these are only the way by way of which you can start with e-business. Okay, so e-business is completely based on ऑनलाइन नेटवर्क. ओके, इंटरनेट में नेटवर्क पे ऊपर ही ये पर्टिकुलर ई बिज़नेस क्या होता है, ट्रेड होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं यहाँ पर. ओके, वॉट एवर द गुड्स एंड द सर्विसेज यू वांट टू प्रोवाइड, दोज सर्विसेज एंड गुड्स you can provide by having such e-business platform. Okay, so what are the advantages? Usually see people get the product information online and they order the product through online. Okay, and at the same time they can choose the payment option, either prepayment or cash on delivery. Okay, so this is one of the benefit. अगर उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, so they can simply return it back. ओके, 7 days का जो एक अपॉर्चुनिटी रहता है टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. In this way, seller and buyer both get advantage of internet platform, and after using that particular good or after getting that services, they may provide their feedback also, but that too in online platform. Traditionally, trading by the buyers and sellers is done through 3 channels like face to face, mail and phone. Okay, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें क्या करते हैं हम, एक तो 3 चैनल होते हैं. फेस टू फेस हम कस्टमर और बिजनेसमैन दे विल मीट फेस टू फेस, आइदर मेल थ्रू दे विल कॉन्टैक्ट टू ईच अदर और बाय फोन. बट इन इंटरनेट, द इंटरनेट हैज़ बिकम द 4th चैनल फॉर ट्रेड. इंटरनेट थ्रू ये 4th चैनल हो गया है ट्रेडिंग करने के लिए. थ्रू वेबसाइट्स यू कैन सिंपली विजिट टू दैट बिजनेसमैन्स बिजनेस एक्टिविटी एंड यू कैन गेट वॉट एवर द गुड्स यू नीड. Internet trade is booming and allowing business to sell more and at lower cost. Why it is on lower cost? Why? Because number of intermediaries like wholesaler, middleman, they are completely lapsed from this particular type of e-business. Okay, you will directly get whatever the goods you want directly from factory outlets, and make sure that all those products, only you have to make sure that all those products are in that particular brand only. Okay, you have to make sure that you are visiting the proper website, because number of fake websites are also running in the market. Thus internet offers a great opportunity over traditional channels as it has some advantage और strength. okay, ये advantage भी है इसके लिए और strength भी है, कुछ number of positive points भी है to start up with the e-business. ओके, सबसे पहला एडवांटेजेस पॉइंट क्या है कि यू कैन स्टार्ट सच ई बिजनेस बाय सिटिंग एट योर होम. ओके, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू हैव नो नीड टू डू अ बल्क इन्वेस्टमेंट. नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर. सी, ईज ऑफ फॉर्मेशन. ओके, ये काफ़ी छोटा पॉइंट दिया है, इसमें आप बहुत कुछ भी लिख सकते हो. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. How it is possible? Imagine if you want to start with your traditional business of restaurant. So what you have to do is you have to physically make available of all the spaces, okay, all the table, chair and whatever the requirements are there to start with one restaurant. Okay, so all those things you have to you have to make ready, okay, in that particular space. Okay, and at the same time you have to prepare or you have to make over that particular space for द कस्टमर्स. ओके, अगर कस्टमर्स वहाँ पर बैठेंगे, उनको ताज़ी हवा लगेगी, थोड़े ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उनको और अच्छा लगेगा. प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी शुड बी देयर, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन शुड बी देयर. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, बट इफ़ व्हाट, अगर आपको आपका बिजनेस शुरू करना है ऑनलाइन बेसिस पे, सो एंड ऑन ऑनलाइन बेसिस ऑल्सो यू आर providing the menu card, you are representing your menu card to your customers on the website. Once the customer will go through your app or website, they will get the number of menu card.
okay, and in that number of menus they will be there, and whatever the menu they would like to order, so they will order by simply putting one call or simply providing one order. ओके तो ये ऑनलाइन में है. अगर ये ऑफलाइन होता, दैट इज़ वॉट ट्रेडिशनल होता, तो कितना सारा झमेला करना पड़ता. ओके, फिक्स असेट्स को भी परचेस करना पड़ता, प्रॉपरली प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता जहाँ पर रेस्टोरेंट्स को लोकेट कर सकते हैं. येस और नो. एंड एट द सेम टाइम लोकेशन ऑल्सो डज मैटर. आप अगर बहुत ही फॉरेस्ट एरिया में अगर आपका रेस्टोरेंट शुरू करने जाओ, सो देर विल नॉट बी एनी स्कोप और चांस टू गेट मोर एंड मोर इनकम एंड मोर प्रॉफिट. Okay, so such food industry you can start by having e-business platform. Okay, so it is very much easy to form e-business basically in food industry. food industry का भी business आप घर पे बैठे चला सकते हो without having restaurant. Okay, next is lower investment requirement. Same मैंने जो restaurant का example दिया, same example is over here. See, investment requirement is low as compared to traditional business, as the stall does not have physical existence and can be managed with the less manpower. So if trade does not have much of the investment but have contacts, that is network, he can do fabulous business. Okay, अगर मेरे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है, मेरे पास बड़ा अच्छा खासा 5-स्टार होटल नहीं है, दैट थिंग इज़ ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, मैनेजेबल. वाई? बिकॉज इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर क्वालिटी ऑफ फूड, टेस्टी फूड टू ऑल द people, all the customers who wants to try food from my restaurant, so they have no need to come and visit to that restaurant. ओके, घर बैठे होम डिलीवरी बेसिस पे ही मैं उनको खाना पहुंचा सकती हूँ अच्छा वाला. ओके, एंड आई विल नॉट रिक्वायर अ बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इट. नेक्स्ट इज convenience. Internet offers a convenience of 24/7 by 365 days a year. ओके, पूरे साल के जितने सारे महीने, जितने सारे घंटे हैं, तो सारा टाइम इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स. ओके, see, business is going on any time and flexibility is also available. Nowadays you can order number of medicines also, it is also on online basis. आपने अगर advertisement देखा होगा तो आपको पता होगा. Okay, yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything anywhere anytime. Okay, ये तो सबसे बलबूते वाला पॉइंट है ई बिजनेस का. क्या कि इट एनेबल्ड एंड एनहांस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही चलता है ये बिजनेस. ये बिजनेस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होगी तो वो भी टेक्नोलॉजी थ्रू ही होगी इससे. ओके, बिकॉज नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रोवाइड्स और विजिट that website, and at the same time the same link they can share to their another friends, relatives, families, etc. ओके, सो इजीली एक्सेस होता है ये वेबसाइट्स को विजिट करना, एंड यू कैन गेट नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर द मेन्यू कार्ड और फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स which is based on quality, based on price, based on color, shape, size, etc. Number of filtrations are also there. So it is very much convenient type of business. And yes, at the same time 24/7 ये business चलता रहता है. ये e-business का दुकान कभी बंद नहीं पड़ता. Okay. Next is speed. Yes, of course, speedy delivery will is also possible over here. See, this benefit becomes all the more attractive when it comes to information. Much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of mouse. Mouse पे एक click करो, so of course you will get the speedy information of all the details regarding that particular goods. Suppose I want to buy a fridge, refrigerator, and at the same time I also want to buy one washing machine. तो washing machine के लिए there are number of comparisons are available on the website, and at the same time for the refrigerator also. Okay, and at the same time they provides product details as well as.
Okay, if I want to do I want to make the trade, or I want to buy that particular machinery on offers basis, so there are number of offers are also available. अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट SBI कार्ड से करूँ, सो देयर इज़ वन अनदर ऑफर. एक्सिस बैंक का ATM यूज़ करूँ तो अनदर ऑफर. क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, सो देयर इज़ थर्ड अनदर ऑफर. सो ऑल दोज ऑफर्स. सो ये बताने के लिए अगर मैं एक सेल्समैन रखूँगी, सो आई विल हैव टू मेक द पेमेंट टू दैट पर्टिकुलर सेल्समैन. अगर सेल्समैन एक के पीछे ही पड़ गया तो बाकी सारे कस्टमर्स को कौन हैंडल करेगा? ओके, सो स्पीडीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कर सकता है? ओनली एंड ओनली सच इंटरनेट फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर ई बिजनेस. नेक्स्ट इज ग्लोबल एक्सेस. ग्लोबली ऑल्सो यू कैन टर्न अराउंड योर शॉपिंग. आपकी जो शॉपिंग है तो आप वो सिर्फ आपके इंडिया के तरफ ही क्यों रखते हो? आप ग्लोबली भी आपको जो कुछ भी बाइंग करना है, शॉपिंग करना है, वो भी आप कर सकते हैं. बिकॉज नंबर ऑफ ग्लोबल आउटलेट्स आर ऑल्सो देयर इन द अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अदर शॉपिंग वेबसाइट्स जो होती है, तो वहाँ पर यू विल गेट एन नंबर ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑफ फॉरेन बेस. सी, इंटरनेट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज. इसके लिए बाउंड्रीज भी नहीं है आप. एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज एट योर होम बेस, ओके, बट ऑन ऑनलाइन बेसिस, तो सेम आपका होम बेस जो बिजनेस है वो आप आउट ऑफ बाउंड्री, दैट इज़ बियॉन्ड इंडिया भी लेकर जा सकते हो. ओके, on one hand it allows the seller an access to global market. On the other hand it offers a freedom to buyer to choose product from ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कोई भी ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट क्या कर सकते हो? ऑनलाइन परचेस कर सकते हो. ओके, नो नीड टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर. there is no any interaction is no such any kind of interactions are there. ओके, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी लेन देन की ज़रूरत नहीं होती. अगर आपको पैसा भी भेजना हो, सो ऑनलाइन यू कैन ट्रांसफ़र द मनी. एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट, सो विद इन 7 days देयर इज़ अ रिटर्न पॉलिसी इज ऑल्सो अवेलेबल. इवन एट द सेम टाइम यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर करिकुलम. मतलब जो एजुकेशन सेक्टर है, सपोज इफ एनी कैंडिडेट वांट्स टू टेक एडमिशन ऑन लंदन यूनिवर्सिटी या फिर कोई US की कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एडमिशन लेना हो, सो दे ऑल्सो हैव एन एक्सेस ऑन ऑनलाइन बेसिस. दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड इन देयर एंट्रेंस एग्जाम बाय सिटिंग ओवर इंडिया. ओके, इंडिया में बैठे बैठे भी आप कहाँ, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कुछ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता होगा, सो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो एडमिट योर सेल्फ फॉर एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी. ओके, एंड इज दिस इज पॉसिबल जस्ट ड्यू टू ग्लोबल एक्सेस. ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट. अगर आप ट्रैवलिंग टिकट भी बुक कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं पर भी घूमने जाना हो, सो नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर देयर लाइक मेकमाईट्रिप.com. ओके, सो वो क्या, GoIbibo. सो ये क्या करते हैं, आपको एक प्रॉपर वे से एक एट अ रैशनल रेट दे विल बुक योर टिकट by sitting at your home. At your doorstep you will get all the services. So this is what the global access which has been provided by e-business. Next is movement towards a paperless society. See, मैं बताते बताते I am providing you examples also. Why? Because after completing explanation you are supposed to write down at least a single example for that particular given explanation, and that's why I am providing you examples. सो आई होप आप रनिंग नोट्स भी अगर लिखते होंगे, सो आप एग्जाम्पल्स भी लिख दो. ओके, मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. ऑफकोर्स ऑनलाइन बिजनेस, as and when I will start with the online business, the n number of paperworks has been demolished. Okay, see, use of internet has considerably reduced the dependence on paperwork. Thus recording and referencing of information has become easy. सारा इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? ऑनलाइन बेसिस, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ही रिकॉर्ड होता है. सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ ऐप्स आर देयर. सो वहाँ पर ही क्या होता है, जो पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स के जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ डिटेल्स है, ओके, GST फाइलिंग है या फिर GST कैलकुलेशन है, सो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल इन
इंटरनेट, ओके, ऑन इंटरनेट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी आजकल का क्या हो गया है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स खोल के रखी है। IRCTC ट्रेन के लिए है, ओके, GST के लिए देयर इज़ इनकम टैक्स की वेबसाइट, ओके, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न पे ऑफ करने के लिए देयर इज़ अनदर वेबसाइट गिवन बाय गवर्नमेंट, ओके, इनकम टैक्स की ही एक वेबसाइट होती है। सो वॉट एवर द पेपर ट्रांजेक्शन you want to do or paper documents you have to file, all those documents also you can provide on online basis only, ओके। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन भी लेना हो, सो कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पे ही आप क्या कर सकते हो, खुद को एनरोल कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ अ मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट। जैसे मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग और फैसिलिटेटिंग देयर नंबर ऑफ वेबसाइट्स वेयर इन यू कैन enroll for your PAN card, Aadhaar card, you can file your income tax return, okay. So this is what one of the government is also supporting for the online, go for online, okay. If you want to start with the online business, so there is no number of restrictions and rules to be follow, ओके। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे नियम जो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए होते हैं उसको डिमोलिश करके ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत कम नियम या रूल्स बनाए हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस, दिस सपोर्ट्स एंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट इज ईजी पेमेंट। पेमेंट मोड इज ऑल्सो ईजी, ओके। ई पेमेंट करना पड़ेगा आपको थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ओके। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी अलर्ट ऑन विच वेबसाइट यू आर मेकिंग पेमेंट और यू आर पुटिंग योर फाइनेंशियल डेटा, एंड इट इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। मतलब क्या, एक ही झटके में आपका पेमेंट क्या हो जाएगा, एक अकाउंट से उनके, दैट इज़ वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट ईजी पेमेंट फैसिलिटी, एंड एट द सेम टाइम कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इफ़ दे आर थिंकिंग दैट इट इज़ रिस्की इनफ, सो यू कैन मेक द पेमेंट फिजिकली। जो आपको कुरियर वाला रहेगा बंदा, उसके पास आपको पैसा देना पड़ेगा, लाइक दैट। नेक्स्ट इज देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। कुछ तो कमियां होती है, जहाँ कुछ अच्छी बात होती है वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं। व्हाट आर दोज निगेटिव पॉइंट्स? लैक ऑफ पर्सनल टच। नाउ व्हाट इज़ लैक ऑफ पर्सनल टच? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, इफ़ आई एम हैविंग माई ओन बिजनेस ऑफ बुटीक, तो बुटीक में मैंने जितने सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे हैं, ओके, वेस्टर्न आउटफिट रखे हैं, ट्रेडिशनल आउटफिट रखे हैं, साड़ीज़ रखे, ड्रेस मटेरियल, सो आई कैन ईजिली कन्विंस टू माई कस्टमर्स रिगार्डिंग देयर चॉइसेस, and I can easily provide them my personal help to choose which type of fabric they want, okay. So such type of personal touch, is it available in the online market? No, online में सिर्फ आपको ही चूज़ करना पड़ेगा, and even you cannot touch, you cannot feel the about to that particular product for which you are searching, okay. So e-business lacks the personal touch. One cannot touch or feel the product, so it is difficult for the customers to check the quality of the product. इसीलिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, लोअर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी कभी कभी हमारे पास आ जाता है ऑर्डर करने के बाद। नेक्स्ट इज डिलीवरी टाइम। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू कैन गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाय, as soon as you buy it, but that doesn't happen in online basis. ऑनलाइन में क्या होता है, once you will order your product, उल्टा दिवाली के सीज़न में तो क्या होता है, प्रोडक्ट 8-10 दिन भी लेट आपके घर तक पहुंच सकता है। इफ़ द नियर बाय वेयर हाउस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, सो देयर विल बी सम डिले, चांसेस ऑफ डिले फॉर द डिलीवरी ऑफ सच प्रोडक्ट, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, कुरियर वाले को एड्रेस ही नहीं मिलता प्रॉपरली, तो आपको क्या करना पड़ता है, वाइल बाइंग दैट प्रोडक्ट यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग योर रेसिडेंशियल एड्रेस और एड्रेस ऑफ डिलीवरी। सो शिपमेंट में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, बट इन द ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, एज एंड व्हेन यू विल मेक द पेमेंट, और पेमेंट बाद में करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट यू विल गेट गुड्स।
So this time lag often discourages customer. Example, Amazon now assures 1 day delivery. This is an improvement but does not resolve to the issue completely. Amazon का एक दिन में कभी डिलीवरी हुआ है? मुझे तो अभी तक नहीं हुआ है. Okay, so they are on the line of the improvement, but still somewhere they are on a back side. जो ट्रेडिशनल बिजनेस में गुड्स मिलते हैं ऑन द स्पॉट, वो ऑन द स्पॉट गुड्स ऑर्डर करके मिलेंगे. नो, इवन पिज़्ज़ा आल्सो दे एश्योर टू द कस्टमर के 30 मिनट्स के अंदर मिलेगा वरना पैसे वापस, बट वैसे होता नहीं है एक्चुअली. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इश्यूज. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम्स थ्रू ऑनलाइन बिजनेस. येस, RBI कहता है जानकारी और सतर्कता है ज़रूरी. येस और नो? आप अमिताभ बच्चन की ऐड भी देखते होंगे. ओके, सो ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत बड़ा गड़बड़ क्या हो सकता है. वंस यू एनकोड योर पिन कोड, ओके, वंस यू डिकोड, दैट इज वॉट, एंटर योर पिन कोड ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन, देर आर नंबर ऑफ हैकर्स आर ऑल्सो सिटिंग इन द मार्केट हु नोज हाउ टू क्रैक दैट पर्टिकुलर वेबसाइट एंड टू अचीव दैट पर्टिकुलर पिन कोड. सो वो पिन कोड लेकर वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मोलेस्ट योर फाइनेंशियल डिटेल्स. Okay, so this security issue also happens in online. Many of the times क्या होता है, we use Paytm, we use PhonePe, okay, but सामने वाले को पैसा नहीं जाता तो हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकली पेमेंट करना पड़ता है. एंड वी डोंट नो व्हेन दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन इज गेटिंग आवर ऑनलाइन पेमेंट विच वी हैव डन अर्लियर. ओके, हमें मैसेज भी नहीं आता और सामने वाले को पैसा दिया जाता है फिजिकली भी, और 2 दिन के बाद ऑनलाइन पैसा भी सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है. सो दीज आर फ्यू सिक्योरिटीज इश्यूज आर देयर विच आर डिस्टर्बिंग इन नेचर. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. समटाइम्स अ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के भी इश्यूज आते हैं, बट अब तक तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज़ मच लेसर दैन ट्रेडिशनल बिजनेस, बिकॉज ट्रेडिशनल बिजनेस में गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, कुछ टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, कुछ भाड़ा देना पड़ता है वो पर्टिकुलर जगह का. ओके, विच गोज़ फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. हाई रिस्क is involved as there is no direct contact between parties. In case of frauds, it becomes difficult to take legal actions. Okay, कौन था, किसने ऑर्डर किया, किसने सेल किया, कितने अमाउंट की प्राइस उसने चार्ज की, लाइक दैट. What does it mean? We don't know who is customer and at the same time we don't know who is the seller. Okay, so number of chances of frauds are also there. Suppose मुझे मेरा घर भाड़े पे देना है, so what I'm going to do is I'm supposed to provide my information, all my personal details, family details and my property details on that particular website. एंड वो वेबसाइट के ऊपर ही मुझे क्या मिलेगा, मेरा कस्टमर्स मिलेंगे जो मेरे रूम को, मेरे घर को रेंटल बेसिस पे लेने के लिए इच्छा रखेंगे. बट आई डोंट नो दैट पर्टिकुलर कस्टमर, दे आर ऑल पर्सनल डिटेल्स. ओके, देयर माइट बी चांसेस कि वो कुछ माल प्रैक्टिस करने वाले हो सकते हैं, कुछ चोर हो सकते हैं, लाइक दैट. ओके, सो वी डोंट नो द पर्सनल डिटेल्स ऑफ ईच अदर, बट वी सिंपली गो इन द ट्रेड. वी सिंपली फॉर्म सम ट्रांजेक्शन्स विथ स्ट्रेंज पर्सनैलिटीज़ जिनको हम फेस टू फेस भी नहीं जानते. सेम ऑनलाइन बिजनेस में भी वैसे ही होता है. हम समझते ही नहीं है, सोचते नहीं है फ्रॉम वेयर वी आर परचेसिंग, फ्रॉम वूम वी आर परचेसिंग क्लोथ्स एंड अदर मटेरियल. ओके, सो एंड इसी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रॉड्स भी होते हैं. वी नेवर गेट द प्रोडक्ट एज वी हैव, वॉट एवर वी हैव सिलेक्टेड एंड वॉट एवर वी हैव चूज, those product we don't get. many of the times size में, कलर में, शेप्स में भी डिफरेंस होता है. ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस आर एट अ हायर लेवल. ओके, अभी तो इंटरनेट से साइबर रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ने लगे हैं. नंबर ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेलर्स आर देयर इन द मार्केट, बट दे प्रोवाइड fraudulent activity, they provide fraud cards to their customers. So all these are some limitations of e-business also. साइबर क्राइम ध्यान में रखो, साइबर क्राइम्स बहुत सारे घटते हैं. क्यों? बाय बिकॉज ऑफ हैविंग ई बिजनेस. ई बिजनेस थ्रू नंबर ऑफ हैकर्स आर स्प्रेडिंग देयर माल प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस. सो आप भी क्या करिए, जानकार रहिए, सतर्क रहिए.
this is what the basic funda. All of you clear? So here we have completed with some advantages and limitations of e-business. So here we are done for the day. Thank you.